Dear students, myself Dr. Dipti Srivastav, Associate Professor, Government Dungar College, बीकानेर। डायनासोर्स के बारे में मैंने पहले आपके साथ दो वीडियोस शेयर किए थे। आज मैं आपको उसके कंटिन्यूएशन में तीसरा वीडियो शेयर कर रही हूँ। डायनासोर्स पार्ट 3, कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन। इस वीडियो में हम डायनासोर्स के विलोपन या विलुप्त होने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Origins. The rise of the dinosaurs was not an overnight sensation. Dinosaurs took about 50 million years to develop into the species we recognize today. जैसा कि हम जानते हैं, डायनासोर्स का ओरिजिन कोई ओवरनाइट घटना नहीं थी। इनको स्पीसीज तक डेवलप होने में लगभग 50 मिलियन ईयर्स लगे थे। After thriving and dominating the earth for 130 million years, the great dinosaurs and their contemporaries became suddenly extinct. Geological evidence indicates that dinosaurs became extinct at the boundary between the Cretaceous and Paleogene eras about 66 million years ago, at a time when there was worldwide environmental change resulting from the impact of a large celestial object with the earth and or from vast volcanic eruptions. Various factors have been suggested for their total extinction, such as catastrophism, epidemic, food poisoning, racial census, climatic changes, overspecialization, interspecific warfare, or competition with ancestral mammals. None of these has been accepted as being completely satisfactory. Probably a combination of several factors was responsible for their extinction. 13 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर फलने फूलने और आधिपत्य जमाने के बाद विशाल डायनासोर्स और उनके समकालिक अचानक क्रिटेशियस ईरा के अंत तक विलुप्त हो गए। उनके पूर्ण विलोपन के लिए अनेक कारण प्रस्तावित किए गए हैं। जैसे प्रलयवाद, महामारी, भोजन विषाक्तता, जातीय जीर्णता, जलवायवीय परिवर्तन, अत्यधिक विशिष्टता, अंतर्जातीय संघर्ष या पूर्वज स्तनधारियों के साथ प्रतियोगिता। इनमें से कोई भी कारण पूर्णतया संतोषजनक स्वीकार नहीं किया गया है। संभवतः अनेक कारकों का संयोग उनके विलोपन का उत्तरदायी था। Popular extinction theories. Cosmic radiation from a nearby exploding supernova star killed them. Acid rain from volcano activity was responsible. Continental drift altered the climate. Disease ravaged dinosaurs' population. Small mammals appeared that fed on dinosaur eggs. डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बारे में कई थ्योरीज हैं, जैसे कि सुपरनोवा
एक्सप्लोडिंग के कारण, उनके विस्फोट के कारण जो कॉस्मिक रेडिएशन निकले, उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण जो एसिड रेन होती है वो इनके एक्सटिंक्शन का कारण बनी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण क्लाइमेट या जलवायु में परिवर्तन आया, जिसके कारण डायनासोर्स विलुप्त हुए। या हो सकता है कि कोई गंभीर महामारी हो जिसके कारण डायनासोर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। उस समय स्मॉल मैमल्स उत्पन्न हुए जिन्होंने डायनासोर्स के एग्स को खा लिया या उनको अपने भोजन के रूप में उपयोग में लिया। The Cretaceous Tertiary Extinction Event or the KT event is the name given to the die-off of the dinosaurs and other species that took place some 65.5 million years ago. For many years, paleontologists believed this event was caused by climate and geological changes that interrupted the dinosaurs' food supply. However, in the 1980s, father and son scientists Luis and Walter Alvarez discovered in the geological record a distinct layer of iridium, an element found in abundance only in space that corresponds to the precise time the dinosaur died. This suggests that a comet, asteroid, or meteor impact event may have caused the extinction of the dinosaurs. In the 1990s, scientists located the massive Chicxulub crater at the tip of Mexico's Yucatan Peninsula, which dates to the period in question. क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे केटी इवेंट कहा जाता है, यह इवेंट डायनासोर्स के ख़त्म होने के समय के लिए यह नाम दिया गया है। इस समय डायनासोर्स और कुछ दूसरी स्पीसीज़ भी ख़त्म हो गई थी और यह समय 65.5 मिलियन ईयर्स पहले का है। तो उस समय जबकि डायनासोर्स और उनके समकालीन दूसरी स्पीसीज़ विलोपित हुई, वो समय क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन इवेंट कहलाता है या केटी इवेंट कहलाता है। कई सालों तक पैलेंटोलॉजिस्ट ये विश्वास करते रहे कि इस इवेंट का कारण या डायनासोर्स के विलोपन का कारण क्लाइमेट और जियोलॉजिकल परिवर्तन था, जिसके कारण से डायनासोर्स को प्रॉपर फूड नहीं मिला या उनको भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण से वो विलोपित हुए। 1980 में लुइस और वाल्टर एल्वेरेज नाम के साइंटिस्ट, जो कि पिता और पुत्र थे, उन्होंने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में इरिडियम की लेयर देखी। इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि केवल स्पेस में या अंतरिक्ष में बहुतायत में मिलता है। जब वो फॉसिल्स या जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में उन्होंने इरिडियम देखा, तो ये जियोलॉजिकल रिकॉर्ड उस वक्त के थे जबकि डायनासोर्स ख़त्म हुए। तो
उससे ये निष्कर्ष निकाला कि कोई धूमकेतु या छोटा तारा या उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण डायनासोर्स विलोपित हुए। इन 1990s 1990 में साइंटिस्ट ने मेक्सिको के युक्टान पेनिनसुला में चिकजुलुब क्रेटर या एक बड़ा खड्डा देखा, जो कि उसी समय बना था। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड या मीटियोर पृथ्वी से टकराया, जिसके कारण से ये एक बड़ा खड्डा, विशालकाय खड्डा बना। इस खड्डे का नाम चिकजुलुब क्रेटर है, जो कि जिस गांव में ये खड्डा बना है उसके नाम पर आधारित है। एंटर लुइस एल्वारेज, a Nobel Prize winning physicist, inventor and pioneer in the field of radiation and nuclear research. He and his son, noted geologist Walter Eldewez, were conducting research in Italy when they discovered a centimeter thick layer of iridium enriched clay at the KT boundary. Iridium is rare on Earth but more common in space. The Alvarezes published their findings in 1981, postulating that the thin layer of iridium was deposited following the impact of a large meteor, comet or asteroid with the Earth. Furthermore, this bolide impact, that is the meteor, comet or asteroid colliding with the Earth's surface, could have caused the extinction of the dinosaurs. At the time, the Alvarez theory was so far removed from prevailing hypotheses that it was ridiculed. Slowly, though, other scientists began finding iridium evidence at various places around the globe that corroborated the Alvarez theory. There was, however, no smoking gun in the form of an impact site. Then in 1991, a massive meteor crater 110 miles in diameter was discovered on the edge of the Yucatan Peninsula, extending into the Gulf of Mexico. The Chicxulub crater, as it was dubbed, was named for a nearby village. Scientists believe the bolide that formed it was roughly 6 miles in diameter, struck the Earth at 40,000 miles per hour and released 2 million times more energy than the most powerful nuclear bomb ever detonated. The heat would have broiled the Earth's surface, ignited wildfires worldwide, and plunged the planet into darkness as debris clouded the atmosphere. Miles high tsunamis would have washed over the continents, drowning many forms of life. Shock waves would have triggered earthquake and volcanic eruptions. 1990 में ये मैसिव क्रेटर
देखा गया, जो कि जिसका डायमीटर 110 माइल था और ये माना गया कि ये अर्थ से या पृथ्वी से 40,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से टकराया और जिसके कारण से इससे बहुत अधिक एनर्जी निकली। ये एनर्जी एक पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से जो एनर्जी निकलती है उससे लगभग 2 मिलियन टाइम्स ज़्यादा थी। इस हीट के कारण अर्थ की सरफेस काफ़ी गर्म हो गई, आग लग गई वहाँ पर प्लेनेट, और उसके कारण से जो वो पूरा प्लेनेट था वो उसमें वहाँ पर अंधेरा हो गया और धुआं ही धुआं भर गया पूरे एटमॉस्फेयर में। इसके कारण कई सुनामीज आई जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स को एक तरह से तबाह कर दिया और इसके कारण से अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए। The resulting darkness could have lasted for months, possibly years. It would have plunged the Earth's temperature into the freezing zone, killing plants and leaving herbivores with nothing to eat. Many dinosaurs would have died within weeks. The carnivores who feasted on the herbivores would have died a month or two later. Overall, the loss of biodiversity would have been tremendous. Only small scavenging mammals that could burrow into the ground and eat whatever remained would have survived. The iridium layer plus the Chicxulub crater were evidence enough to convince many scientists that the bolide impact theory was credible. It explained much of what previous theories could not. इस एक्सप्लोजन के कारण जो पृथ्वी पर जो अंधेरा छाया वो कई महीनों तक या संभवतः सालों तक बना रहा, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर फ्रीजिंग जोन तक चला गया, फ्रीजिंग पॉइंट तक चला गया, या अर्थ जो है वो बहुत ठंडी हो गई। इसके कारण से प्लांट्स ख़त्म हो गए, ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस थे उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कई डायनासोर्स विद इन वीक्स ख़त्म हो गए। हर्बीवोरस के लिए जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो हर्बीवोरस भी ख़त्म होने लगे। तो ऐसे कार्निवोरस जो कि हर्बीवोरस को खाते थे उनके लिए भी भोजन नहीं बचा और वो भी 1 महीने या 2 महीने बाद ख़त्म होने लगे। तो इस तरह से ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत अधिक हुआ। केवल छोटे मैमल्स जो कि स्कैवेंजर्स थे, जो बिलकारी थे, जो कि अंदर बिलों में छुप गए और जो वो बचा हुआ कुछ भी जो खा सकते थे केवल वो ही जीवित बचे।
इरिडियम लेयर और क्रेटर की उपस्थिति, ये जो एविडेंस थे या ये जो प्रमाण थे, उसके कारण बहुत सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी पर विश्वास करने लगे कि वास्तव में इस तरह का कोई टकराव पृथ्वी पर हुआ किसी धूमकेतु का या एस्टेरॉयड का, जिसके कारण से ये क्रेटर बना और यह वातावरण में इस परिवर्तन के कारण या क्लाइमेट में चेंज के कारण डायनासोर्स तथा उनके समकालिक अचानक विलुप्त हो गए। The asteroid was imagined to be 6 to 12 miles in diameter, causing a crater 130 miles across. The Southwest Research Institute has named it Baptistina and traced the meteor's path. 160 million years ago, a 100-mile wide asteroid was headed for the planet. A smaller and unnamed asteroid struck and shattered Baptistina, sending fragments towards the atmosphere. 95 million years later, the fragments reached Earth, destroying the dinosaurs. तो साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम बैप्टिस्टीना है, उन्होंने वहाँ पर साइंटिस्ट्स ने मीटियोर्स का पाथ ट्रेस किया। उनके अनुसार 160 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड प्लेनेट से टकराया और इसके अलावा एक स्मॉलर एंड अननेम्ड एस्टेरॉयड स्ट्रक एंड शैटर्ड बैप्टिस्टीना, सेंडिंग फ्रैगमेंट्स टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। और इसके कारण से फ्रैगमेंट्स एटमॉस्फेयर में बिखरे। 95 मिलियन ईयर्स लेटर ये फ्रैगमेंट्स अर्थ में पहुँचे और उन्होंने डायनासोर्स को डिस्ट्रॉय किया। The Deccan Traps are an active lava bed in India. These volcanoes were extremely active over a long period of time, but the most massive eruption coincides with the KT boundary. Those eruptions could have released 10 times as many harmful gases into the atmosphere as the meteor crash. डेक्कन ट्रैप्स सक्रिय लावा बेड्स हैं जो कि इंडिया में पाए गए हैं। ये वॉल्केनोज बहुत अधिक सक्रिय रहे, बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक सक्रिय रहे और उनका जो सक्रिय होने का टाइम है वो केटी बाउंड्री के टाइम से मेल खाता है। इनके कारण से कई हार्मफुल गैसेस निकली होंगी। ये हार्मफुल गैसेस एक मीटियोर क्रैश है, जो गैसेस निकलती हैं उनसे निकलने वाली गैसेस से 10 टाइम्स अधिक हार्मफुल हैं। These substances include extreme quantities of dust, sulfuric acid, carbon dioxide,
leading to the extreme temperature swing at the end of the Mesozoic. The existing two-thirds of these lava beds covered almost a million square kilometers. That's about half of India. Because of the climate of the late Cretaceous, insects were able to flourish. Many of the bugs from that era were preserved in amber, and that has allowed scientists to examine them for diseases. It was determined that some of the smallest animals we know today could have taken down giants. लेट क्रिटेशियस में उस समय जो क्लाइमेट था उसके कारण से इंसेक्ट्स फलने फूलने लगे। इनमें से कई बग्स उस समय पाए जाने वाले जो फॉसिल्स उस समय के जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उसमें दिखाई दिए हैं। तो ये पता चलता है कि उस समय काफ़ी बग्स फल फूल गए थे और इन बग्स के कारण कुछ डिजीज़ या कुछ रोग उत्पन्न हुए। इन रोगों के कारण उस समय जो एनिमल्स थे उनको वो भी उनसे रोग जनित हो गए। Some bugs carried leishmania and malaria that could easily infect reptiles. कुछ बग्स में लिशमानिया और मलेरिया के पैरासाइट्स पाए गए जो कि जिन्होंने कि जो रेप्टाइल्स को इजीली आसानी से इन्फेक्ट किया। Fossilized dung revealed the ingestion of nematodes, trematodes and protozoa that could have caused dysentery. उस समय के जो डंग के जो फॉसिल्स मिले हैं उससे पता चला कि एनिमल्स निमेटोड्स, ट्रिमेटोड्स और प्रोटोजोआ को इंजेस्ट करते थे या ग्रहण करते थे, जिसके कारण से उन एनिमल्स में डिसेंट्री हो गई होगी। These diseases were relatively new, so the dinosaurs had little resistance to these pests. क्योंकि उस समय ये डिजीज़ रिलेटिवली न्यू थी, इसलिए डायनासोर्स उनके प्रति बहुत कम प्रतिरोधी थे। Other possibilities. It is also highly suggested that around the time of the KT boundary, dinosaurs were already in decline. ये भी सजेस्ट किया गया है कि उस समय जब डायनासोर्स को विलुप्त होने का जो समय माना गया है उस समय पहले ही वो संख्या में कम हो गए थे, क्योंकि उनके कई कारण बताए गए हैं। दी हर्बीवोरस मेन फूड सोर्स वेजिटेशन वाज डाइंग ऑफ बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल्स एंड हायर टेम्परेचर्स। क्योंकि जो हर्बीवोरस थे, जो उनका मेन फूड सोर्स थे वेजिटेशन, इसके अलावा जो प्लांट्स थे वो ऑक्सीजन लेवल की कमी के कारण और हायर टेम्परेचर के कारण ख़त्म हो रहे थे। एज हर्बीवोरस डाइड, कार्निवोरस फॉलोड सूट विदाउट न्यूट्रिशन। क्योंकि हर्बीवोरस ख़त्म हो गए थे तो कार्निवोरस जो थे वो भी ख़त्म होने लगे। These was already a sharp decline in dinosaurs population, and it is proposed that perhaps the asteroid just finished them off. तो इस तरह से डायनासोर्स की पॉपुलेशन में पहले ही काफ़ी कमी आ गई थी और उसके बाद एस्टेरॉयड के टकराव के कारण
यह पूरी तरह से विलुप्त हो गए। Dinosaurs roamed the earth for 160 million years until their sudden demise some 65 million years ago in an event now known as the Cretaceous Tertiary or KT extinction event. K is the abbreviation for Cretaceous, which is associated with the German word Cretaceous. Besides dinosaurs, many other species of mammals, amphibians, and plants died out at the same time. Over the years, paleontologists have proposed several theories for this extensive die-off. One early theory was that small mammals ate dinosaur eggs, thereby reducing the dinosaur population until it became unsustainable. Another theory was that dinosaurs' bodies became too big to be operated by their small brains. Some scientists believed a great plague decimated the dinosaurs' population and then spread to animals that feasted on their carcasses. Starvation was another possibility. Large dinosaurs required vast amount of food and could have stripped bare all the vegetation in their habitat. But many of these theories are easily dismissed. If dinosaurs' brains were too small to be adaptive, they would not have flourished for 160 million years. Also, plants do not have brains, nor do they suffer from the same diseases as animals. So, their simultaneous extinction makes these theories less plausible. डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के लिए और भी कई बातें बताई गई। उस समय डायनासोर्स के कारण डायनासोर्स के अलावा मैमल्स, एम्फीबियंस तथा प्लांट्स की भी कई स्पीसीज विलुप्त हुई। तो पैलेंटोलॉजिस्ट ने कई थ्योरीज इस पूरे विलोपन के कारणों के लिए बताई। एक थ्योरी ये बताती है कि उस समय स्मॉल मैमल्स अपीयर हो गए थे। इन स्मॉल मैमल्स ने डायनासोर्स के एग्स को अपने भोजन के रूप में लेना शुरू किया। इसके कारण से डायनासोर्स की पॉपुलेशन काफ़ी कम होती चली गई और अंत में ये पूरे के पूरे विलुप्त हो गए। दूसरी थ्योरी ये बताती है कि डायनासोर्स की बॉडी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में उनके जो ब्रेन थे वो छोटे थे। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि प्लेग के कारण डायनासोर्स की पॉपुलेशन ख़त्म हुई। ये प्लेग दूसरे एनिमल्स तक भी पहुंचा जो कि उनके शवों को खाते थे। दूसरा संभव कारण स्टारवेशन भी हो सकता है। बड़े डायनासोर्स को बहुत अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन क्योंकि उनके हैबिटेट में वेजिटेशन की कमी हो गई थी तो उनकी यह आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ज़्यादातर इन थ्योरीज़ को डिसमिस्ड किया गया या आसानी से माना नहीं गया, क्योंकि अगर डायनासोर्स के ब्रेन उनकी बॉडी के अपेक्षा बहुत छोटे थे
तो फिर वो कैसे 160 मिलियन ईयर्स तक इस धरती पर फले फूले या उन्होंने इस धरती पर राज किया। इसके अलावा प्लांट्स में ब्रेन्स नहीं होते और ना उनको ये कोई बीमारी लगी, तब फिर वो कैसे इन एनिमल के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। Moody wrote an initial report, Studies in Paleopathology, in 1917 and followed with a full book called Paleopathology in 1923. The books are surveys of fractures, infections, arthritis and other pathologies visible in fossils. And after examining these cases, he created a graph of injury and alignment incidence over time. And dinosaurs and their reptilian neighbors seem to have a rough time. Bone breaks, infections, and other pathologies reached a maximum of development among the dinosaurs, mesosaurs, crocodiles, plesiosaurs, and turtles, and the curve dropped off only when the Mesozoic age of reptiles ended. The increasing occurrence of pathologies may have driven dinosaurs into extinction. It seems quite probable, Moody wrote, that many of the diseases which affected the dinosaurs and their associates became extinct with them. मूडी नाम के साइंटिस्ट ने 1917 में एक प्रारंभिक रिपोर्ट लिखी, स्टडीज़ इन पैलियोपैथोलॉजी। उसके बाद उन्होंने 1923 में पैलियोपैथोलॉजी नाम की पूरी किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने फॉसिल्स में पाए जाने वाले कई रोगों के बारे में सर्वे किया। उनको देखा कि फॉसिल्स से उनको पता चला कि ऐसे फॉसिल्स में कई एनिमल्स के जो फॉसिल्स थे उनमें कई जगह उनको फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस, ऑर्थराइटिस और दूसरी पैथोलॉजीज़ दिखाई दी। और इन फॉसिल्स को या इन केसेस को स्टडी करने के बाद या एग्ज़ामिन करने के बाद उन्होंने उस समय एनिमल्स में जो इंजरी हुई या जो रोग या रोगों की घटनाएं जो हुई उनके बारे में एक ग्राफ क्रिएट किया। उन्होंने बताया कि डायनासोर्स और उनके दूसरे रेप्टिलियन जो दूसरे उनके साथ के जो रेप्टाइल्स थे उस समय उनके लिए एक खराब समय था। उस समय उनकी हड्डियां कई ब्रेक हुई या टूटी, उनमें इन्फेक्शन हुए और दूसरी बीमारियां हुई, जिसके कारण से डायनासोर्स, मेसोसॉर्स, क्रोकोडाइल्स, प्लीसियोसॉरस और टर्टल्स अपने डेवलपमेंट के मैक्सिमम तक पहुंचकर भी उनमें कमी आ गई और इस तरह से उनका जो कर्व था वो नीचे आ गया, यानी कि उनका जो विकास का जो कर्व था वो डिक्लाइन हो गया। तो मूडी ने ये लिखा है कि ये संभवतः उस समय कई बीमारियां ने डायनासोर्स और उनके एसोसिएट्स को इन्फेक्टेड किया, जिसके कारण से वो एक्सटिंक्ट हो गए।
For many years, climate change was the most credible explanation for the dinosaurs' demise. Dinosaurs thrived in the planet's consistently humid tropical climate. But in the late Mesozoic era, that corresponds with the extinction of the dinosaurs, evidence shows that the planet slowly became cooler. Lower temperatures caused ice to form over the north and south poles and the oceans to become colder. Because the dinosaurs were cold blooded, meaning they obtained body heat from the sun and the air, they would not have been able to survive in significantly colder climates. Yet, some species of cold blooded animals, such as crocodiles, did manage to survive. Also, climate change would have taken tens of thousands of years, giving the dinosaurs sufficient time to adapt. बहुत समय तक यह माना जाता रहा है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ में क्लाइमेट का परिवर्तन हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, कूलर होती चली गई, जिसके कारण से नॉर्थ और साउथ पोल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया और वहाँ पर आइस या बर्फ़ जम गई और ओशंस भी जो हैं वो लगातार कोल्डर होते चले गए, क्योंकि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। वो इस सिग्निफिकेंटली कोल्डर क्लाइमेट्स में अपने आप को सरवाइव नहीं रख पाए। लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरी स्पीसीज़ जैसे क्रोकोडाइल्स, वो उन्होंने अपने आप को उस वातावरण के लिए अनुकूल कर लिया और वो सरवाइव या वो जीवित रहे। इस क्लाइमेट चेंज में कई हजारों साल लगे, जिसके कारण से डायनासोर्स के पास अडेप्टेशन के लिए सफिशिएंट टाइम था। In 1956, Russian astronomer Joseph Shklovsky became the first scientist to consider the extinction was due to a single catastrophic event when he theorized that a supernova, the explosion of a dying star, showered the earth in radiation that could have killed the dinosaurs. Once again, the problem with the theory was explaining why dinosaurs die out and other species did not. Also, scientists said that such an event would have left evidence on the surface of the earth, trace amounts of radiation dating back to Cretaceous period. None was found. Paleontology remains a competitive discipline even though its central mystery appears to have been solved. Agreement over dinosaur extinction is far from unanimous, and fossils continue to be found that add to the body of knowledge about how the dinosaurs lived and died. Only recently have birds been identified as descendants of the dinosaurs, and the theories regarding dinosaur intelligence and behavior continue to change. Even long established truths
such as dinosaurs' cold-bloodedness, are open for debate. The climate change theory still holds away over some scientists who refute that the Chicxulub impact was the sole cause of the extinction. Evidence from the 65 million year old lava flows in India hint that a giant gaseous volcanic plume might have initiated global climate change that threatened the dinosaurs. तो इस प्रकार लगातार कई थ्योरीज दी गई, कई एविडेंस भी मिले, लेकिन अभी तक ये विवाद ही है या अभी तक इसमें कोई संतोषजनक कारण स्वीकार नहीं किया गया है कि डायनासोर्स कैसे विलुप्त हुए। लगातार थ्योरीज डायनासोर्स की इंटेलिजेंस और उनके बिहेवियर के बारे में चेंज होती चली गई हैं। यह मानना कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, वो भी अभी तक पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। यह माना गया है कि बर्ड्स जो हैं वो डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। क्लाइमेट चेंज थ्योरी जो है वो कुछ साइंटिस्ट द्वारा मानी गई है और कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। इसी तरह से चिकज़ुलुब इम्पैक्ट जो है वो भी एक्सटिंक्शन का एक कारण माना गया है और इंडिया में 65 मिलियन ईयर्स पहले का जो ओल्ड लावा का जो प्रमाण मिला है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है और यह इसके कारण से ये बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण डायनासोर्स विलुप्त हुए होंगे। तो इस तरह से आज हमने डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारणों के बारे में पढ़ा। इनमें से कोई भी कारण पूर्णतः स्वीकार नहीं हुआ है, तो इसलिए यह माना जाता है कि संभवतः अनेक कारकों का संयोग डायनासोर्स के विलोपन का उत्तरदायी था। थैंक यू।